Hello students, a warm welcome to all of you on our online learning platform Learnov8. Today in this session I would be starting the next subtopic of this chapter, that is based on vacuoles. Okay, so let's discuss about the structure, types and functions of these vacuoles. So what are exactly vacuoles? So if you remember that we say that when we were discussing the endomembrane system, we were listing the four parts of the endomembrane system. One was we used to call as endoplasmic reticulum, second was the Golgi complex, third was the lysosomes, and today in this session we would be discussing the fourth component of this endomembrane system, that is we call as vacuoles. Okay, What are exactly these vacuoles? ठीक है, वैक्यूल्स अगर हम बात करेंगे तो ये एक्चुअली एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. ठीक है, हमारे नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज जो हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं क्या, वैक्यूल्स. ठीक है, ये जो हमारी नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया हमने इसे कहा, ये हमारे साइटोप्लाज्मिक एरिया से जो सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल मेम्ब्रेन दैट वी कॉल एज टोनोप्लास्ट. ओके, तो वैक्यूल्स के बारे में अगर बोला जाए तो हम जनरली ये कहते हैं कि जो वैक्यूल्स होते हैं दे एक्चुअली अराइज फ्रॉम विच पार्ट विच दैट वी कॉल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, सो हम कहते हैं जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पिंचिंग होती है तो पिंचिंग के बाद क्या हो जाते हैं, वैक्यूल्स बनते हैं. ठीक है, अब ये जो वैक्यूल्स है ये हमारे प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं. एंड नाउ व्हाट दे कंटेन इनसाइड टू देम, मतलब वैक्यूल्स के अंदर क्या चीज़ें हैं उसके बेसिस पे हमारे पास वैक्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं. वैक्यूल जनरली क्या है, वी डिफाइन इट एज अ नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया. इट्स अ नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया present in cytoplasm okay, and this vacuole is actually surrounded by a single membrane, surrounded by a single membrane, that is what we call as tonoplast. Tonoplast. Is that clear? Okay. Now, as we discussed that these vacuoles, they are believed to be formed by expansion and pinching of from which part, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो इट मीन्स दैट वैक्यूल्स जो है ये कहाँ से अराइज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. नाउ वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द टाइप्स ऑफ दीज वैक्यूल्स. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ये जो वैक्यूल्स है दे स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, दैट इज व्हाई वी ऑल्सो कॉल दीज वैक्यूल्स एज स्टोरेज यूनिट्स. व्हाट वी कॉल देम एज, we call them as storage units. So on the basis of now the internal content, what things they are storing, these vacuoles are being classified into how many types, 4 types. Okay, so we have the first vacuole that we call as sap vacuole, then the second as contractile vacuole, the third as the food vacuole, and the fourth as air vacuole. So these are the 4 types of vacuoles and we will actually discuss them one by one. Let's start the first vacuole, that is we call as sap vacuole. Okay, so what is exactly a sap vacuole? So we can say sap vacuole is a type of vacuole that is going to store sap. Okay, a vacuole that would be actually storing sap is this is what we call as sap vacuole. So now what is exactly sap? We say generally sap is the combination of water, minerals, proteins, isn't it? So this all combination actually forms this sap. And if we say that, अगर आपको याद होगा जब हम plant cell और animal cell को differentiate करते हैं तो we actually define this cell sap as a basic fundamental to differentiate plant and an animal cell. ठीक है, ये जो sap vacuole होता है we generally define it as a fluid filled vacuole. ठीक है, एक ऐसा वैक्यूल जिसमें क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं. ठीक है, या एक ऐसा वैक्यूल जो एक्चुअली दैट इज सराउंडेड बाय व्हाट, दैट इज सराउंडेड बाय अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है जिसे हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट. ठीक है, तो वैक्यूल जो है दे आर द फ्लूइड फिल्ड
सैप वैक्यूल जो है, दीज आर द फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स और वेसिकल्स जो कि हमारे साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, वी कॉल इट एज स्टोनोप्लास्ट। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये जो सैप वैक्यूल्स होते हैं प्रेडोमिनेंटली ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर पाए जाते हैं हमारे मैच्योर प्लांट सेल्स में, ठीक है। अगर हम रेफरेंस लें, जो हमारे पास अ नंबर ऑफ स्मॉल सैप वैक्यूल्स, स्मॉल छोटे से सैप वैक्यूल्स किन में पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स और यंग प्लांट सेल्स में, ठीक है। जो एनिमल सेल्स और यंग प्लांट सेल्स होती हैं उनमें सैप वैक्यूल होता है बट इट्स स्मॉलर इन साइज, ओके। वाइल एज इफ वी डिस्कस अबाउट अ मैच्योर प्लांट सेल, यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है एक मैच्योर प्लांट सेल की, आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पोर्शन जो साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई कर रखा है वो इस ब्लूइश एरिया ने ऑक्यूपाई करा है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज sap vacuole. Okay, so here it is this sap vacuole. We also call it as central vacuole because it occupies the central position of the cell. This vacuole is actually going to store what? Cell sap, and it's surrounded by a membrane, and that membrane is we call as stonoplast. Is that clear to everyone? Okay. So in mature plant cells, the small vacuoles fuse to form a single large central vacuole which occupies 90% of the volume of the cell. Is that clear? ओके तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें वैक्यूल को प्रॉपरली स्टडी करना है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट अ वैक्यूल, वी मस्ट प्रेफर विच सेल? मैच्योर प्लांट सेल. ओके, इवन इन केस ऑफ immature plant cells, vacuoles are also present. Animal cells, very few vacuoles are also present. Smaller vacuoles I can say are present. So why? Because what happens after maturation, यही छोटे छोटे vacuoles fuse हो जाते हैं and they give rise to a larger vacuole. Is that clear to everyone? Okay. So the fluid present in the sap vacuole is we call as sap, और हम इसे क्या नाम देते हैं? We also call it as vacuolar sap. Is that clear? Okay. What does this vacuolar sap contain? ध्यान से हमें इसका कंपोजिशन समझना, बिकॉज समटाइम्स द MCQs आस्क फ्रॉम दिस पॉइंट. तो ये जो हमारे पास वैक्यूलर सैप जो होता है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. लाइक इट हैज़ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो, इट हैज़ शुगर्स, इट हैज़ सम सॉल्ट्स या प्रोटीन्स या बाकी सब. ठीक है. सो वी जनरली से दैट इट कंटेन्स मिनरल सॉल्ट्स, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, esters, proteins, waste products and water soluble pigments, especially कौन सा? Anthocyanin. Please remember this thing. So what is anthocyanin? It's actually a water soluble pigment. Even water soluble pigments का काम क्या होता है यहाँ पे? ये जो हमारे water soluble pigments जो होते हैं ये coloration provide करते हैं इस सेल को. ठीक है. जैसे अगर हम बात करेंगे हमारे पास ये जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, मोस्टली जो दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है एंथोसाइनिन और दूसरा होता है एंथोजेंथिन. ठीक है. अगर हम एंथोसाइनिन की बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा, अगर हम एक प्लांट सेल के अंदर देखें तो मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग वाटर सॉल्युबल पिगमेंट जो होता है दैट इज दिस एंथोसाइनिन. ठीक है. सो एंथोसाइनिन का काम क्या होता है? इट इम्पार्ट्स, इफ यू विल सी दैट रेड कलर, इवन अगर हम बात करेंगे रेड, ब्लू या पर्पल कलर्स जो होते हैं हमारे फ्लावर्स के, तो वो किसकी वजह से होते हैं? इसी एंथोसाइनिन की वजह से. इवन समटाइम्स द कलर ऑफ द फ्लावर ऑल्सो अपीयर्स टू बी आइवरी लाइक, इजंट इट? या आइवरी टू वी कैन से डीप येलो, दैट इज बिकॉज ऑफ these anthocyanins. Is that clear? Okay. So water soluble pigments provide what they provide? Coloration to the cell. The most common water soluble pigment is, please remember, that is anthocyanins and anthoxanthins. Anthocyanins impart red, blue and purple color, while as anthoxanthins impart ivory to deep yellow color. Okay, is that clear to everyone? Okay. Now we will discuss the next type of the vacuole, that is we call as contractile vacuole. What does a contractile vacuole mean? As the word itself says, contractile means this is a type of vacuole that must be having the power of expansion or contractibility. Okay, so we also call it as this contractile vacuole is the most important part, it's the most important organelle, we can also say, in case of where? In case of protestant cells, or we can say a fresh water protists जो हमारे पास होते हैं. ठीक है. So in the screen you will see this image. This is an image of a paramecium.
Okay, so here we are concerned about the first part of this paramecium. That part here I am highlighting. This is we call as contractile vacuole. Okay, let's read it. So we say these contractile vacuoles, they occur in where? In some protestan and algal cells. और जनरली ये प्रोटिस्टन एंड अलगल सेल्स में कहाँ पे? जो फ्रेश वाटर में रहते हैं. ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन. ओके, ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है. ठीक है, ओके. A contractile vacuole has highly extensible means जो stretch हो सकती हैं. ठीक है, और collapsible means जो रिटेंशन एक्सटेंशन दिखा सकते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल एज कोलैप्सिबल मेम्ब्रेन. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारे पास वैक्यूल है, ये हमारे पास एक्चुअली क्या है? दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से कुछ ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जैसा अपीयर हो रहा है, इजंट इट? इससे जो ये लाइंस अराइज हो रही हैं, इन्हें हम कहते हैं रेडिएटिंग कैनल्स. क्या नाम देते हैं? रेडिएटिंग कैनल्स. ठीक है, let us read it. It's also connected to a few feeding canals, for example paramecium. ठीक है, क्या कहा हमने कहा कि जैसे अगर हम पैरामीशियम को देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम में दिखा हुआ है कि इस वैक्यूल के साथ बहुत सारी क्या है? फीडिंग कैनल्स या रेडिएटिंग कैनल्स आप इन्हें बोल सकते हैं. इन फीडिंग कैनल्स और रेडिएटिंग कैनल्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है वाटर या वेस्ट प्रोडक्ट्स को कहाँ? वाटर सिंपली वाटर या वाटर के साथ अगर कभी कभी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको क्या करना? उनको ऑब्जॉर्ब करना या उन्हें रिसीव करना कहाँ से? सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से. ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है? देखो, जब ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये वैक्यूल का साइज जो होता है ये लार्ज हो जाता है. ठीक है, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जब ये वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाता है तो ये यहाँ पर क्या कर लेता है? ये अपनी सरफेस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि अपनी मेम्ब्रेन को श्रिंक कर देता है. एज अ रिजल्ट जो एक्सेस वाटर होता है वो यहाँ से एक्सपेल हो जाता है. ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? हमने क्या कहा? इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू अ फ्यू फीडिंग कैनल्स, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम. द फीडिंग कैनल्स ऑब्टेन वाटर विथ और विदाउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. ठीक है, ओके. दे पोर द सेम इनटू द कॉन्ट्रैक्टाइल. फीडिंग कैनल्स ने वाटर या बाकी सब चीज़ें एब्जॉर्ब की. कहाँ से? सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की, और उसके बाद उनका साइज जो है वो स्वेल हो गया. ये वैक्यूल स्वेल हो गया. स्वेलिंग ऑफ वैक्यूल के लिए हम एक टर्म यूज करेंगे, डायस्टोल. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायस्टोल. ओके, अब ये जो स्वोल्न कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होगा, अब ये किसके नज़दीक आएगा? ये क्योंकि अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर है. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब आता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सामने आते ही क्या हो जाता है? ये कोलैप्स हो जाता है. ठीक है, और उस कोलैप्सिंग को हम नाम देते हैं क्या? वी कॉल इट एज सिस्टोल. Okay, got this thing? This the swollen contractile vacuole comes in contact with plasma membrane and collapses. Collapsing is called what? Systole. And this throws the vacuolar contents to the outside. इस तरह से जो contents होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? They are given outside. Is that clear to everyone? Okay. So we have the next type now, that is we call as food vacuole. So we can also call this food vacuole as digestive vacuole. Okay, so ये जो हमारे पास food vacuole जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? जैसे हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल दे दी गई है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अमीबा. ओके, सो अमीबा में आपको दोनों तरह के वैक्यूल दिखेंगे. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होगा जिसकी वजह से ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन होगी, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा? फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल की वजह से हम फूड वैक्यूल को दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल, बिकॉज इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टफ ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड. क्लियर? ओके, so they occur in the cells of protozoan protists. ठीक है, several lower animals and phagocytes of higher animals.
ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे हमारे पास इस फूड वैक्यूल का काम क्या होता है, फूड वैक्यूल या डाइजेस्टिव वैक्यूल जिसे हम नाम देंगे, ये जनरली कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोटोजोन्स का, या लोअर इनवर्टेब्रेट्स में ये पाया जाता है, या जो हमारे पास वर्टेब्रेट्स होते हैं, हायर एनिमल्स जो होते हैं, उनके पास जो सेल्स होती है स्पेसिफिकली जो फैगोसाइटोसिस शो करती हैं, यानी कि उन सेल्स को फैगोसाइट्स कहा जाता है, तो वो क्या करती हैं, उनमें ये फूड वैक्यूल पाया जाता है। इस फूड वैक्यूल में क्या होता है, जैसे हम जब एंडोसाइटोसिस पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि कोई फूड पार्टिकल जो है वो एंटर हुआ, ठीक है, ध्यान से समझिए, एंडोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस में हम फैगोसाइटोसिस पढ़ते हैं और दूसरा पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फूड वैक्यूल जो होगा ये दोनों फॉर्म में होगा, फैगोसोम में हो सकता है और पिनोसोम। फैगोसोम हम इसे तब कहेंगे जब इसके अंदर कौन सा है, व्हेन इट कंटेन्स द सॉलिड फूड मटेरियल। सॉलिड फूड अगर इसने इंजेस्ट किया तो हम इसको फैगोसोम कहेंगे, अगर इसने लिक्विड मैटर इंजेस्ट किया तो हम इसे पिनोसोम कहेंगे। क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करेंगे जैसे फैगोसाइटोसिस की बात की जाती है तो हम बोलते हैं कि जनरली ये जो फूड वैक्यूल जो होता है ये हमारा किसके साथ कंबाइन हो जाता है, जब ये हमारे पास जो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है ये उसके साथ कंबाइन हो जाता है, उस प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इस तरह से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। सो वी कैन से दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इवन अगर हम बात करेंगे हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट सेल्स जैसे हमारे पास वो फैगोसाइटोसिस शो करने के लिए WBCs होती हैं, ठीक है, तो WBCs भी फॉरेन इन्फेक्शन को एनगल्फ करके उन्हें ट्रैप करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, बिकॉज वी कैन से दैट दे हैव अबंडेंट ऑफ दीज सेल्स, ठीक है, दे हैव अबंडेंट ऑफ दिस फूड वैक्यूल और डाइजेस्टिव वैक्यूल। इट्स नॉट ओनली अबाउट डाइजेस्टिंग द फूड, इट्स जस्ट अबाउट वी कैन से क्लीनिंग ऑल्सो, ओके। So we can say food vacuoles or digestive vacuoles in case of higher animals, they are helping in cleaning the internal contents of the body, okay? या जो भी हमारे डेब्रिस अंदर आते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना, उन्हें एनगल्फ करना, उनको ब्रेक करना, that is actually the function of this food vacuole there, okay? Clear हुआ ये चीज़? Yeah, okay. Now let's move to the last type, that is we call as air vacuoles, ठीक है। तो ये air vacuoles क्या होते हैं, हम कहते हैं कि एयर वैक्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोकैरियोट्स का। यहाँ पर हम एक एग्जांपल रिलेट करेंगे, BGA मतलब ब्लू ग्रीन अलगे, इजंट इट। तो ये एयर वैक्यूल्स इनमें इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि अगर हम देखेंगे ये एक्चुअली रेगुलेट करते हैं बायोएनसी को, ठीक है, दे रेगुलेट बायोएनसी, डन। एक्चुअली ये जो हमारे पास एयर वैक्यूल्स होते हैं हम कहते हैं जनरली ये किससे बने होते हैं, ये स्मॉलर जो हमारे यूनिट्स होते हैं, ये एयर वैक्यूल एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा सा वैक्यूल है। एयर वैक्यूल को हम दूसरा नाम गैस वैक्यूल भी कहते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है कि इसमें छोटे से सब माइक्रोस्कोपिक जो यूनिट्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, वो फ्यूज़ हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमें दिखने विजिबिलिटी में हमें लगता है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ये स्मॉल एंटिटीज़ जो होती हैं ये फ्यूज़ हो जाती हैं और इसी फ्यूजन की वजह से जो ये पूरा एंटायर स्ट्रक्चर बना इसे हम नाम देते हैं क्या, गैस वैक्यूल। इट्स गोइंग टू हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ गैसेस, ठीक है, और गैसेस स्टोर करने की वजह से ये हमें किस में हेल्प करता है, इट रेगुलेट्स बायोएनसी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, so they have been reported only in prokaryotes. An air vacuole is not a single entity, neither it is surrounded by a common membrane, कोई common membrane इनके बाहर नहीं होती। तो ये generally किससे बनता है, it's formed by the fusion of small microscopic vesicles. Is that clear to everyone? With this we have completed all the details about this vacuole, about the structure of the vacuole, types of the vacuole. I hope you find this video quite helpful. Thanks for staying tuned with Learnov8. Good luck.